So no one told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you're broke. Your love life's DOA. Hello everyone, welcome to this video. As you can see कि मैं just अभी नहा कर आई हूँ, मेरे बाल गीले हैं. And as you can also see, actually you can't see because I haven't told you yet, but my foot is broken. I'm on my week 3 of recovery. I'm telling you, April was such a bad month for me. I just don't know what happened. किसने मेरे ऊपर नजर लगा दी, क्या हो गया, but it was such a horrible month. मैं day 1 से परेशान हूँ अप्रैल के, and now we're on the 28th day of it. And इस महीने क्या हुआ है, I have no idea. I've been like the least productive, least unhappy, but I've still like managed to not cry about it. मैं एक भी दिन इस महीने नहीं रोई हूँ, which is so funny because मैं हर महीने एक बार तो रो देती हूँ. So let's talk about what exactly happened. So I was just minding my own business and I was on a Uber bike, not Uber bike, it was Ola bike. And life में मैंने पहली बार bike लिया था. I had never taken the bike because my parents don't really allow me to go through the bike because of various reasons, not just two-wheeler safety but also male drivers होते हैं and I'm a female. You know, it gets weird. My sister has also had some experiences, so she was also like not supportive of it. But यहाँ पे बाइक बहुत जल्दी मिल जाती है एंड पीक आवर्स में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड लाइक एन ऑटो अ कैब anything of that sort. Plus the bike is also like much cheaper, so I just felt like कि ठीक है, I'm getting late, I need to go home quickly. Actually no, I was going to work. It was the other way around. I was getting very late, so I decided, you know what, bike is the fastest, the cheapest and the best option for me right now, so why not? Like कब तक मैं डरूंगी इस चीज से कि दिन दहाड़े भी मेरे साथ कुछ क्राइम हो सकता है, जो by the way हो सकता है. I should take that seriously as well, but at the same time, you know, you're more safe during the day when it's like office hours, it's peak timing. I'm less scared about everything else, so I thought कि ठीक है, let's take the bike. And I did take the bike, but the funny thing about Indian drivers in general and NCR drivers के बारे में तो मैं क्या ही बताऊं, is that they just like to wing it when they're driving. And मुझे टू व्हीलर्स से ऐसे भी डर लगता है when they're on the road because so many two wheelers are so rash in their driving. मतलब उनको बिल्कुल सेंस नहीं होता है कि तुम सीधा एक लेन पकड़ के चलो. they're always trying to like squeeze in through the gaps and overtake and all of that. so बहुत कम ही लोग मुझे कॉन्फिडेंस देते हैं टू व्हीलर्स पे जहाँ पे मुझे ऐसा फील होता है कि वो सही चला रहे हैं. तो ये बंदा कोई ख़राब ज़्यादा नहीं चला रहा था, बट what he did was at one point we had to take a left turn and this guy did not even give an indicator, didn't even have a side mirror, he didn't even look back कि पीछे से कुछ आ रही है कि नहीं, and he just started taking a left. एंड पीछे से एक और बाइक आ रही थी एंड उसने हमें मार दिया. एंड वी हैड लाइक सच अ ड्रामेटिक फॉल. व्हेन आई वाज फॉलिंग आई हैड सो मेनी मिलियन थॉट्स लाइक रनिंग इनसाइड माय हेड, व्हिच इज सो फनी बिकॉज यू नो बुक्स में यू सी और मूवीज में यू सी कि स्लो में सब कुछ हो जाता है एंड देयर सो मच गोइंग थ्रू योर ब्रेन. एंड आई नेवर अंडरस्टूड कि मिली सेकेंड, एक सेकेंड में कैसे किसी के दिमाग में इतने सारे थॉट्स आ सकते हैं. बट मेरे दिमाग में आया था एंड आई थिंक आई ऑडिबली इवन सेड समथिंग लाइक आज तो हो गया मेरा. एंड फॉर्चुनेटली लाइक वो थोड़ा सा हम साइड लेन की तरफ जा रहे थे, सो इट वॉज नॉट द एग्जैक्ट मेन रोड बिकॉज इट वुड हैव कॉज्ड अनदर प्रॉब्लम, दैट इज कि पीछे से इतनी हाई स्पीड गाड़ियाँ आ रही होती है, दे वुड हैव लाइक run over us and that is the worst thing that could happen to you. Thankfully helmets and all everything था, और वो कटोरे वाला हेलमेट तो बिल्कुल नहीं था, जॉ प्रोटेक्शन वाला नहीं था, बट पूरा फेस कवर करने वाला हेलमेट था. बट फॉर्चुनेटली आई डिड नॉट फॉल लाइक ऑन माई हेड, आई बेसिकली फेल लाइक दिस. सो मैंने अपने हाथ से मोस्टली इम्पैक्ट लेने की कोशिश की. सो मेरे यहाँ पे एक ब्रूज आया था छोटा सा जो अब चला गया है एंड आई फेल लाइक टुवर्ड्स माई राइट साइड. एंड जो मेरा राइट फुट है उसमें यहाँ पे कुछ ब्रूजेस एंड स्क्रैप्स हुए. आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट, एक्चुअली अब उतना दिख भी नहीं रहा है, इट्स मोस्टली लाइक क्लियर एट दिस पॉइंट. बट थोड़े स्क्रैप्स यहाँ पे आए थे, जगह जगह मेरा पैर ब्लू हो गया था बिकॉज ऑफ ब्रूजेस. बट मैं जिस साइड गिरी, फनी इनफ मेरे उस साइड पैर में कोई मेजर इंजरी नहीं आई. इट्स जस्ट लाइक minor bruises that I got. My main injury happened to be on my left foot. I now like after thinking about it for a while, I think कि बाइक ने साइड से लेफ्ट साइड से मारा था हमें, हम राइट की तरफ गिरे. सो आई एम थिंकिंग जो बाइक पीछे से आ रही थी उसका इम्पैक्ट मेरे लेफ्ट फुट पे लगा है. दैट्स वाई आई गॉट दिस लाइक ह्यूज इंजरी ऑन माई लेफ्ट फुट. मुझे तो लगा कि ख़त्म हो गया सब कुछ. एंड इट हैपन सो क्लोज टू माई वर्क प्लेस कि मैं चुपचाप उठी और हम चले गए. लाइक आई जस्ट वेंट
to work. And वहाँ लंगड़ा के I went somehow and then I sat down for a while. उसके बाद I realized you know what, it's not just a normal sprain or anything, like छोटी मोटी इंजरी नहीं है जो उसी समय बस फील हो एंड फिर बाद में subside हो जाए. It started increasing a lot more to the point कि when I was leaving I couldn't move. बहुत मुश्किल से मैं पैर उठा के चल पा रही थी. I got home, I told my mom. My mom didn't tell my sister or my dad कि exactly कैसे हुआ. She said कि ऑटो से लगी है या ई रिक्शा से लगी है because she was scared कि you know what, why did I allow her to go through the bike. इसने बोला कि बाइक से चली जाओ and I said yes. So like she felt bad about it. For the first time I feel like we've lied together to our dad. That has never happened. It's usually just me against my parents, always lying to them. I don't lie to you guys. I'm just joking. I don't lie to you guys. I'm hoping my dad does not watch this video and neither does my sister because वो दोनों कभी-कभी मेरे videos देख लेते हैं. So I'll try and ensure कि वो ना देखें. When I came back, उस रात मेरे को बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी because the pain started increasing. I just dropped the entire bottle of hair serum. ग्रह लगा हुआ है मेरे ऊपर, सही कह रहे हैं लोग. I couldn't sleep that night. My leg hurt so much. मैं elevation पे सोई थी तो भी मेरे पैर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था. I kept whimpering the entire night. Then next day we decided to go to the hospital. Even though my mom was a little reluctant, she was like fracture तो नहीं हुआ है वरना तुम बिल्कुल भी नहीं move कर पाती, तुम्हें और भी ज़्यादा पेन होता. But I was still like you know what, hairline भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. Let's at least like confirm कि क्या है. तो उसके लिए wheelchair आया. हमने सोसाइटी के नीचे से व्हीलचेयर मंगवाया and it was such a खटारा बेकार wheelchair. Basically I called my cousin and he came all the way to pick us up. तो wheelchair literally बस मेरे घर से नीचे उनके कार तक ले जाने के लिए यूज़ हुआ. फिर वहाँ हॉस्पिटल में they gave their own wheelchair and I'll add some clips as well of the entire thing because my mom is also a vlogger and she just wanted to like capture whatever was happening. इनिशियली घर के मूवमेंट के लिए ये व्हीलचेयर है और इस व्हीलचेयर से हॉस्पिटल जाने के लिए इस व्हीलचेयर में शिफ्ट हुई हैं मैडम. अब देखें आगे क्या होता है इनका. मत दुखी हो बेटा, सब ठीक होगा, कुछ नहीं हुआ. अरे कुछ नहीं हुआ, नौटंकी. ये देखिए क्रेप बैंडेज इनका, बस इसी बैंडेज तक सीमित रहे. भगवान ऐसा करे इससे आगे कोई समस्या ना आए. अभी तो पता लगना बाकी है कि आप जाओगे. लेट्स होप फॉर द बेस्ट. अब ये हॉस्पिटल आ गई हैं. अब डॉक्टर का इंतज़ार हो रहा है कि कब डॉक्टर साहब आएँ और इन्हें. So yeah, we got the X-ray results and everything and consulted the doctor. The doctor fortunately said कि fracture नहीं हुआ. It feels like बहुत close call था because मेरे पैर में बहुत heavy swelling थी. So what he called it was a bone contusion, which is like bone जब compress हो जाता है due to some impact, उसके कारण एक injury हो जाती है. But मेरा उतना severe case लग नहीं रहा है because I'm on the 3rd week and I can see a lot of improvement. I can walk now. मैंने 2nd week से walk करना शुरू कर दिया था. 1st week में I couldn't really walk. Now I can walk but it hurts after a while and if I walk a little too much then I towards the end of the day start feeling like कि अब मेरा पैर जवाब दे चुका है. And the funny thing is कि just a week before I had viral fever, so I was on the bed for an entire week. And मैं जिस दिन recover किया I decided to go to the office and उसी दिन ये हो गया. So I didn't even catch a break in the middle. Like the past 3 to 4 weeks have been so bad for me. I've been just like stuck in injuries, bimari, so much shit that I've literally given up. My mom also had to go like to a relative's place and everything like outside of Delhi for a while. तो उनका प्लान भी हर दिन ऐसे हो रहा था कि जाओ ना जाओ, क्या होगा, रिकवर होगे कि नहीं. बट बाय द 2nd week I started walking, so I told her कि you can go because I can do the basic things. My mom, like an angel, literally an angel, she cooked me food in a way that would last me for like more than a week straight. तो वो जब से गई, उनके गए हुए भी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है. And I still have everything cooked for me by my mom already. And I'm just like heating stuff and थोड़ा basic सा चावल and रोटी इस टाइप का बना लेती हूँ. And it's like been such a lifesaver because मुझे उतना ही करने में भी मौत आती है. Because I walk around the house and छोटे मोटे chores itself are taking so much of my energy in my foot कि now that pain has gone from just being here जहाँ पे मेरी injury हुई है to being like around this joint and like
हियर एंड मतलब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे भी वो आ चुका है पेन, बिकॉज आई थिंक नस खिंच रहा है मेरे पैर का इनकरेक्ट वॉकिंग स्टाइल के कारण, बिकॉज मैं पूरा वेट तो अपने फुट पे डाल नहीं पा रही हूँ अभी. सो बिकॉज ऑफ दैट it has like caused me a lot of trouble. I feel like crying but I'm not able to. I want to like let it out of my system कि इतना कुछ हो रहा है मेरे साथ and I just want to let it out, but कुछ हो नहीं रहा है. So it's a good thing in the end कि I'm still like a little positive about it. But yeah, daily 3 to 4 times ice pack लगाना पड़ता है and then I put this gel on एंड मालिश करती हूँ. उससे थोड़ा रिलीफ तो मिलता है फॉर अ वाइल, बट देन अगेन आई स्टार्ट वॉकिंग. जब से मॉम गई है मेरा काम बढ़ गया थोड़ा. उससे पहले तो डॉक्टर ने भी बोला था कि पूरा 1 वीक बेड रेस्ट पे रहना है. सो आई डिड एंड शुरू के 1.5 वीक्स आई वॉज ऑल्सो टेकिंग पेन किलर्स. अब SOS बेसिस पे बोला है खाने के लिए. सो अब जब बहुत ज़्यादा पेन होता है मैं तभी खाती हूँ. बट या द होल टाइम आई हैव टू स्टे इन दिस. मैंने कल से लाइक थोड़ा घर पे इसको लगाना छोड़ दिया है, क्रेप बैंडेज, वरना ये हर समय लगा होता था मेरे पैर में एंड दैट वाज अ लाइफ सेवर, बिकॉज इसके बिना मैं बिल्कुल भी नहीं चल पाती थी. And my office chair has also been another lifesaver for me, I would say. Because of my office chair, शुरू के कुछ दिन when I couldn't walk at all, it helped me to at least like move from my bed to the washroom. And कुछ भी अगर छोटा मोटा काम भी करना था, छोटा भी मूवमेंट करना था, आई वुड जस्ट पुट माई सेल्फ ऑन दी चेयर एंड एक पैर तो मेरा ठीक है तो उससे पुश करके आई वुड जस्ट ड्रैग माई सेल्फ अराउंड दी हाउस. इट्स अ लिटिल इनकन्वीनियंट इन द वे बिकॉज घर में इतनी स्पेस नहीं होती है, टाइट स्पेसेस होती हैं, उसमें इतना बड़ा ऑफिस चेयर हर जगह ट्रैवल नहीं कर पाता है, कहीं कहीं टकरा जाता था. आई स्टिल थिंक इट हेल्प्ड मी क्वाइट अ लॉट एंड ऑल इन ऑल I've just like gotten into the groove of how to take care of this whole thing even by myself now that my mom is gone. But yeah, not a good experience at all. शुरू में तो लग रहा था कि wow, I have a story to tell to people. But now it's just inconvenient. अगर ये 1 वीक में ठीक हो गया होता या 2 वीक में मैक्स ठीक हो गया होता, it would still be like a cool story. But knowing कि अब I'm so like close to recovery, I can feel that I'm close enough to recovery and I'm still not close enough. But yeah, that's my accident story. But yeah, all in all, April has been such a मनहूस महीना for me. पता नहीं किसने नज़र लगाई, किस मनहूस ने नज़र लगाई है मेरे ऊपर. मतलब मैंने लाइफ का पहला एक्सीडेंट देख लिया अपना. I never want to see an accident again. This was a very like fortunate accident, I would say, in a way that nothing went too wrong with this. कि मेरे हेड पे कहीं इंजरी नहीं आई, मेरे कहीं और बॉडी में इंजरी नहीं आई, थोड़ा सा बस फुट में आया. स्पीड भी बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं थी, हम लोग भी 20 के स्पीड पे थे, पीछे से आने वाली बाइक भी ऐसे ही 20-30 की स्पीड पे ही होगी. सो ओवरऑल लाइक हाई स्पीड एक्सीडेंट भी नहीं था, बट इट हैज़ इंस्टिल्ड दिस फियर ऑफ रोड्स इनसाइड मी सो बैड कि अब मैं ऑटो से भी जाती हूँ तो मतलब कुछ ना कुछ मुझे को हमेशा ऐसा लग रहा होता है, बिकॉज ऑटो वाले भी बहुत अच्छा नहीं चलाते हैं एंड यहाँ पे इन जनरल भी बहुत लोग अच्छी ड्राइविंग करते नहीं हैं. तो हर दिन ever since I've gone out after my accident, I've seen like every other day some accident happen on the road and usually वो 2-wheelers का ही होता है. I see people just laying on the road, लोग उनकी हेल्प कर रहे होते हैं. I've seen it too many times and it just makes me feel so scared कि ये कभी भी मेरे साथ हो सकता है again. अभी तक बिकॉज कभी नहीं हुआ था तो मैं इस दिलुलू में थी कि मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता है. ऐसा मैं 2-wheelers पे वैसे भी नहीं जाती हूँ तो मेरे साथ नहीं होगा. And the first time I ever did that, it happened to me, so it has instilled this fear inside of me. I'm now scared of the road. अच्छा खासा मैं ड्राइव करके जा रही थी एंड बस इतने ट्रैफिक के कारण आई डिसाइडेड कि मैं खुद ड्राइव नहीं करूँगी, आई विल टेक कैब्स एंड स्टफ एंड देन दैट हैपेंड. सैड पार्ट यही है कि दिस इज़ वन पार्ट ऑफ योर बॉडी जहाँ अगर फ्रैक्चर हो जाए तो यू कैन नॉट एक्चुअली प्रिवेंट योर सेल्फ फ्रॉम यूजिंग दिस पार्ट. हाथ में हो जाए तो तुम एक हाथ में प्लास्टर करके दुनिया का बहुत सारा काम कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें नहीं भी कर सकते हो, बट इट डजंट स्टॉप योर लाइफ इन अ वे कि तुम बाहर नहीं जा सकते, तुम काम नहीं कर सकते. बट व्हेन इट हैपेंस ऑन योर फुट एंड स्पेशली इन दिस एरिया जो बेंड होना ही है चलने के लिए, चाहे तुम कुछ भी कर लो, दिस पार्ट विल गेट यूज. तब इट बिकम्स अ लॉट मोर इनकन्वीनियंट. बैंडेज बांध के मेरा काम चल रहा है किसी तरह एंड होपफुली आई एम जस्ट होपिंग कि इस वीक के एंड तक मेरी रिकवरी लेवल काफ़ी ज़्यादा बेटर होगी. लाइक आई वोंट बी इन दैट मच पेन एंड मैं अपने पूरे लाइक पैर पे सपोर्ट डाल सकूँगी. अनदर कंप्लेंट दैट आई हैव
फ्रॉम लाइक दीज कैब ड्राइवर्स एंड एवरीथिंग इज, मैं लोकेशन अपनी घर की डालती हूँ बट ये बहुत नखरे करते हैं सोसाइटी के अंदर आने के लिए, तो इसके लिए मुझे सोसाइटी के बाहर गेट तक चल के जाना पड़ता है 100 मीटर के आसपास, विच इज़ नॉट अ लॉट if you have feet which are working and are fine, but if you have an injury और तुमसे like 20 मीटर चलना भी एक बहुत बड़ा टास्क है तुम्हारे लिए, especially in the early days, तो these people don't even have the heart टू कम इन साइड। तो कुछ तो होना चाहिए ना ह्यूमैनिटी की, अच्छा ठीक है आपको चोट लगी अंदर छोड़ देते। दे आर सो लाइक आउटराइट ब्लंट अबाउट इट, दे से शिट लाइक कि नहीं हम नहीं छोड़ेंगे, आपको लोकेशन अंदर की डालनी चाहिए। इवन व्हेन आई हैव डन दैट, दे लाइक नहीं हमें तो ये नहीं शो हो रही है। सो मच एक्सक्यूजेज एंड इट जस्ट पिस्ड मी ऑफ। ऐसा लग रहा है मुझे जैसे मैं हर दिन किसी ना किसी ऑटो ड्राइवर से लड़ रही होती हूँ, एंड आई डोंट लाइक इट बिकॉज देयर वे ऑफ टॉकिंग इज नॉट लाइक गुड, इट्स नॉट अ सिविल फाइट, इट जस्ट फील्स लाइक कि मैं एक रूड अनएजुकेटेड इंसान से लड़ाई कर रही हूँ, एंड आई डोंट लाइक इट। मतलब आई यूजुअली ट्राई टू बी एज नाइस एज पॉसिबल टू दीज पीपल बिकॉज एवरीवन इज ह्यूमन एंड यू शुड ट्रीट एवरीवन नाइस, बट यू कैन ओनली ट्रीट समवन नाइस हु डिजर्व्स इट और हु ट्रीट्स यू नाइस बैक। बट अगर तुम इनसे सही से बात करो और ये इतना रूड होकर जवाब दे तो मुझे बहुत गुस्सा आता है और फिर मुझे इनसे मुंह लगने का मन ही नहीं करता है। दैट इज़ वॉट माई लाइफ हैज़ कम टू नाउ डेज, फाइटिंग विद ऑटो ड्राइवर्स एवरी डे, एंड आई हेट इट सो मच। एंड द बैड थिंग इज़ कि ओला, उबर, रैपिडो किसी पे भी कंप्लेंट करो तो वी आर जस्ट सॉरी बोल के वो छोड़ देते हैं, ज़्यादा कुछ करते नहीं हैं, दे डोंट टेक एक्शन अगेंस्ट एनीथिंग। मैंने ओला में एक्सीडेंट के बाद कंप्लेन भी की थी कि दिस हैपेंड टू मी, लाइक व्हाट आर यू गोना डू अबाउट इट। दे वर लाइक ओ वी जस्ट गिव आवर बाइक वाले लोग द प्लेटफॉर्म टू यूज़ दिस ऐप बट वी डोंट रियली लाइक टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर व्हाट दे डू, ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब इतना शिट्स ने बस पुलिस का नंबर चिपका दिया मेरे ऊपर कि go call the police if you've got into an accident. I was like what the fuck bro, like just take some accountability कि तुम्हारे ड्राइवर के कारण मेरे साथ ऐसा हुआ है, but no accountability was taken। और ना ही उन्होंने मेरे को रिफंड दिया, like literally nothing happened and राइड के बाद मैं उस बंदे को 1 स्टार भी नहीं दे पा रही थी। so what the fuck am I supposed to do? Nothing happened, मतलब मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिला इस एक्सीडेंट होने के बाद से। अगर कुछ भी फ़ायदा मिलता तो मुझे समझ आता, but nothing happened in my favor, so I was a little more pissed off after that। बट क्या करें, आई स्टिल हैव टू यूज़ दीज ऐप्स बिकॉज नाउ आई एम 100% रिलायंट ऑन इट। अब तो मैं ड्राइव करके जा भी नहीं सकती, मैं ड्राइविंग की किसी कंडीशन में नहीं हूँ, तो मुझे हर दिन ऑटो तो लेनी पड़ती है। एंड या इट्स जस्ट बिकम अ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल इन माई लाइफ टू वर्क, एंड इट्स ऑल्सो बिकम अ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल टू कीप एक्सप्लेनिंग टू पीपल क्या हुआ, बिकॉज whenever I see a new person who does not know कि क्या हुआ है मेरे साथ, I have to explain this entire story again minus the part, मतलब अगर मेरे मॉम से रिलेटेड है वो लोग in any way तो I have to remove the part कि मैं बाइक से जा रही थी because yeah my mom doesn't want that to be publicized but she doesn't know her daughter is publicizing it on the internet। और जहाँ मेरे फ्रेंड्स होते हैं कुछ होते हैं वहाँ मैं उनको बता देती हूँ कि बाइक एक्सीडेंट हुआ था। But all in all, not a good experience. I would not recommend it. Be safe guys, and especially if you're a two-wheeler driver, don't be an asshole while driving. Like use a helmet, use indicators, use side mirrors. ये सब एक रीज़न के लिए दिया गया है। Do not try to squeeze into small places for no reason at all। मतलब तुम अगर 2 मिनट लेट हो भी जाओगे तो कुछ हो नहीं जाएगा, you know। Just like what they say, it's better to be late than to be sorry, something like that, you know। So please be a careful driver। I have wrapped myself up, I am ready, and yeah, I'll continue with my life and I have to go to work। So yeah, that was my story. Hope you enjoyed it. I did not enjoy this experience, but yeah, it makes up for a good story I think in the end anyway। But yeah, thanks for watching, like, share and subscribe, and I'll see you next time with another one। Bye।